Hi there. Good morning, students. Today I want to discuss with you a very new topic that is non-finite. I know very well that students find it very difficult to understand this topic. Dear students, I make it sure that after watching this video, all questions and queries will abolish from your mind. But first of all, promise me to watch this video till the end. So, without further ado, let's get started. Students, you know very well that verbs are of two types, finite verb and non-finite verb. So, I want to discuss with you some basic and salient features of finite verb. Students, finite verb are always comes just after subject. Second feature of finite verb is that finite verb always change according to subject and tense. Third one is finite verb always shows time, action, state and mood. Now come to the non-finite verb. Non-finite verb never comes just after subject. Second quality of non-finite verb never changes according to subject and tense. Third one, non-finite always play the role of a noun, adjective or adverb. So without waste a moment, let's go through all important sentences related to non-finite verb. Our first sentence is his mother allowed him dash do as he liked. उसकी माँ उसे अलाउ करती है वो सब काम करने के लिए जो वो पसंद करता है. के लिए की सेंस आए तो हमें लगाना है टू इन्फिनेटिव. इट मीन्स दिस सेंटेंस विल बिकम as his mother allowed him to do as he liked. Second sentence, he avoids dash meet me. वो अवॉइड करता है क्या करना, मुझसे मिलना. जब ना की सेंस आए तो उसमें क्या करना है, हमें ing फॉर्म देनी है. इट मीन्स ये क्या वर्क करेगा, ये जीरंड बन जाएगा. he avoids meeting me. The teacher made him dash repeat the exercise. Repeat जब made से सेंटेंस आता है, इट मीन्स जब पॉजिटिव सेंटेंस बनता है और made की हेल्प से बनता है, तब you know very well that then sentence becomes as bare infinitive. It means the sentence will be the teacher made him repeat the exercise. Fourth sentence, the old man is too weak dash walk. You know very well that whenever the word comes to plus adjective and its sentence syntax will be to plus adjective plus to. It means to plus verb की first form. It becomes to infinitive. Sentence will be the old man is too weak to walk. और इसकी हिंदी होगी वो आदमी इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता. इट मीन्स टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, इट बिकम्स द सेंटेंस एज नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज इजी डैश एडवाइज अदर. दूसरों को एडवाइस देना बड़ा ही आसान है, तो क्या बन जाएगा, इट इज इजी टू एडवाइज अदर. दूसरों को एडवाइस देना. इट मीन्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड दैट it is easy takes to infinitive. Please stop dash make noise. Whenever you use stop, it means that you will have to use here as verb की first form plus ing. Please stop making noise. Noise करना बंद करें. Making means gerund. He will be able dash cross the bridge. He will be able to cross the bridge. It means to plus cross to infinitive. He is intelligent enough. वो इतना इंटेलिजेंट है dash solve this sum. जब enough आता है और enough से पहले
हमारा कोई एडजेक्टिव आता है, जैसे कि इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट आया है, तो उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इट मीन्स टू इन्फिनेटिव आएगा। सेंटेंस बिकम्स ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम। नेक्स्ट सेंटेंस फिर से रिपीट हुआ है, स्टॉप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मीन्स जब भी स्टॉप वर्ड बोलोगे और उसके बाद डैश आएगा तो वो जेरेंट लेकर के आएगा। स्टॉप स्मोकिंग एज इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट अस गो फॉर डैश शॉप, आओ चलते हैं, किस काम के लिए चलते हैं, शॉपिंग के लिए चलते हैं। शॉपिंग इज एक जो है क्या है, एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी के लिए आईएनजी आता है, जैसे कि स्विमिंग है, शॉपिंग है, रनिंग है। तो लेट अस गो फॉर शॉपिंग। हिज इंटेंट ऑन डैश गो देयर, ये जब भी कोई डैश आता है और उससे पहले हमारा कोई प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म ही आएगी। ही इज और यहाँ पे क्या है, ऑन प्रेपोजिशन है। ही इज इंटेंट ऑन गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हर्ड ए कॉक, मैंने एक कॉक को सुना डैश क्रो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्रोइंग करते हुए सुना। इट मीन्स ये क्या है, क्रोइंग। यहाँ पे भी आईएनजी है, लेकिन ये आपको क्या ध्यान देना है कि क्रोइंग करते हुए सुना। इट मीन्स ये एक्टिविटी जो है वो हो रही थी और कोई काम है जो वो कॉन्टिन्यूस पोजीशन में है तो वो क्या बनता है, हमारा पार्टिसिपल बनता है। तो आई हर्ड ए कॉक क्रोइंग इन द मॉर्निंग। जब ट्रांसलेशन करते हैं और हिंदी में अगर ते हुए की सेंस आती है तो हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। आई हर्ड ए कॉक क्रोइंग इन द मॉर्निंग। शी वॉज फाइंड फॉर डैश लेट, उसे लेट आने के लिए फाइन किया गया। किस काम के लिए लेट किया, किस काम के लिए उसे फाइन किया गया, लेट आने के लिए। और यहाँ पे क्या है, फिर से वही है, डैश से पहले फॉर आया है। फॉर हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद जब डैश आए तो उसमें क्या करना है, आईएनजी। शी वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट। ही डिड नथिंग बट डैश लाफ, उसने कुछ नहीं किया किंतु क्या किया, लाफ, वो सिर्फ लाफ करता रहा, हंसता रहा। जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ यही था, तो वो सेंटेंस क्या बनता है, नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि देयर वॉज नथिंग बट मोबाइल्स, वहाँ पे फ़ोन ही फ़ोन है। ही डिड नथिंग बट लाफ, उसने कुछ नहीं किया, हंसता रहा। ही डिड नथिंग बट वीप, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ रोता रहा, मतलब वो रोता ही रोता रहा। ही डिड नथिंग बट लाफ, वो हंसता ही हंसता रहा। नेक्स्ट है, ही वॉज टू ड्रंक डैश ड्राइव होम। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फिर से सेंटेंस रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स। टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ही वॉज टू ड्रंक, वो इतना पिए हुए था, टू ड्राइव होम, कि वो गाड़ी चला करके घर नहीं जा सकता था। कुड यू डैश हेल्प मी प्लीज, सेंटेंस में क्या आया है, मॉडल वर्ब आई है। और मॉडल वर्ब क्या लेकर के आती है, बेयर इन्फिनेटिव लेकर के आते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ना आईएनजी लगेगा ना टू लगेगा, सिर्फ जो आपकी मेन वर्ब है वही आएगी। कुड यू हेल्प मी प्लीज। ही वॉज हैप्पी डैश सी मी, वो मुझसे मिलकर के बड़ा खुश हुआ। यहाँ पे मिलना है ना कि देखना। ही वॉज हैप्पी टू सी मी, वो टू सी मीन्स मिलना। ही वॉज हैप्पी टू सी मी, मुझसे मिलकर के बड़ा खुश हुआ। इट इज़ नो यूज़, अब इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। किस काम का, जब इट इज़ नो यूज़ लगाते हैं तो उसके बाद हमें जेरेंड लगाना है। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये अपने आप में एक प्रोवर्ब भी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश इंग्लिश क्विकली इज़ नॉट एन ईजी थिंग, मतलब इंग्लिश को सीखना कोई एक आसान काम नहीं है। और ये क्या आया है, एक तरह से एक ये जेरेंड आया है। लर्निंग इंग्लिश क्विकली इज नॉट एन ईजी थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट हिम डैश गो नाउ, अब उसे जाने भी दो। लेट क्या है, जब लेट से सेंटेंस बनाते हैं और फिर वो हमारा नेक्स्ट लेट के बाद नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेट हिम गो नाउ।
let him speak something, let him come there, let him go out। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है his aim was, उसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था उसका? his aim was dash गेट ए गोल्ड मेडल, उसका उद्देश्य था गोल्ड मेडल पाना। his aim was to get a gold medal। टू गेट क्या है? टू इन्फिनेटिव। यू हैड बेटर डैश स्टे हेयर, तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहीं पे रुको। यू हैड बेटर स्टे हेयर। ये आपका क्या है? स्टे क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। दिस क्लॉथ इज इजी डैश वॉश, ये जो कपड़ा है ये धोना बड़ा ही आसान है। दिस क्लॉथ इज इजी टू वॉश, दिस क्लॉथ इज इजी टू वॉश। दिस इज इजी टू से, कहना बड़ा आसान है। दिस इज इजी टू डू, ये करना बड़ा आसान है। शी इज फॉन्ड ऑफ डैश मेक स्टोरीज, शी इज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन है किस चीज़ की? मेकिंग स्टोरीज, स्टोरी घड़ने की शौकीन है। यहाँ पे क्या है? फॉन्ड के बाद ऑफ आया है। ऑफ इज ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद डैश आया है। प्रेपोजिशन के बाद डैश आए तो हमें उसमें आईएनजी की फॉर्म देनी है। तो सेंटेंस बनेगा शी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग नॉइज, और मेकिंग क्या है? हमारा जेरंड है। नेक्स्ट सेंटेंस आई डोंट नो हाउ डैश स्विम, मुझे नहीं पता ये काम कैसे करना है। जब भी नो वर्ड आता है या फिर लर्न वर्ड आता है या टीच वर्ड आता है और उससे कुछ सिखाने की बात आती है, जानने की बात आती है, तो सेंटेंस बनता है आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, आई डोंट नो हाउ टू लर्न, आई डोंट नो हाउ टू गो, मुझे नहीं पता कैसे ये काम किया जाता है। तो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स ये सेंटेंस बन जाएगा आपका टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज रिच एनफ, वो बहुत अमीर है। कितना अमीर है? डैश बाय ए कार, कि वो एक कार खरीद सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिर से वही एनफ सेंटेंस आया है, एनफ आया है सेंटेंस में, तो ही इज रिच एनफ टू बाय ए कार। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ नो यूज़, इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी इट इज़ नो यूज़ लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? वो जेरेंट यूज़ किया जाता है। इट इज़ नो यूज़ वेटिंग फॉर हर, अब उसका यहाँ पे इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, अब वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। ही इज टू वीक टू वॉक। यू नीड नॉट डैश से एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। नीड क्या है? ये एक आपका मॉडल है, और जब मॉडल आता है तो उसके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेकर के आता है। मॉडल की पहचान ही है कि वो आएगा बेयर फॉर्म के साथ। यू नीड नॉट से एनीथिंग। राइस विल ग्रो वेल इन द डैश सीजन, कमिंग सीजन। कमिंग सीजन मीन्स क्या होता है? आने वाला मौसम। कमिंग सीजन राइस विल ग्रो, राइस उगेगी वेल बहुत ज़्यादा या अच्छे तरीके से इन द कमिंग सीजन, आने वाले सीजन में। ही ट्राइड डैश मेक मी ए फूल, ही ट्राइड उसने कोशिश की, क्या करने की कोशिश की? उसने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू मेक मी फूल। टू मेक, इसमें क्या आएगा? टू मेक, कुछ काम करने की कोशिश की। टू मेक आएगा टू इन्फिनेटिव। आई एम सॉरी डैश डिस्टर्ब यू, मुझे खेद है। किस काम के लिए खेद है? आपको डिस्टर्ब करने के लिए। जब के लिए की सेंस आती है, इट मीन्स कोई पर्पज शो किया जाता है, तो उसमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नेक्स्ट सेंटेंस आई ऑब्जेक्ट टू, जब भी ऑब्जेक्ट टू आएगा तो वो क्या लेकर के आएगा? वो जेरंड लेकर के आएगा। इट मीन्स ये नहीं मानना कि टू आ गया तो अब टू इन्फिनेटिव ही बनेगा। ऑब्जेक्ट टू हमेशा ही जेरंड फॉर्म लेकर के आएगा। आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग ऑन माई वॉल, मैं अपनी दीवार पे जब जो कोई लिख रहा है उसके लिए क्या करता हूँ? ऑब्जेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट टू में बल्कि जेरंड भी नहीं आएगा। आई ऑब्जेक्ट टू राइट ऑन माई वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस द बॉय सजेस्टेड, बच्चे ने सुझाव दिया। किस काम के लिए सुझाव दिया? के लिए की सेंस आई है। के लिए पर्पज है। पर्पज मीन्स टू इन्फिनेटिव है। द बॉय सजेस्टेड टू गो फॉर ए पिकनिक। द ग्रैंड मदर डिसलाइक्स, ग्रैंड मदर लाइक करती है, डिसलाइक करती है, किसी काम को डिसलाइक करती है तो क्या है? वो जेरंड आएगा। द ग्रैंड मदर डिसलाइक्स
यूजिंग फेस पाउडर पर लगाना जो है उसे अच्छा नहीं लगता। इट इज़ ईजी, ये बड़ा आसान है। क्या काम आसान है? इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में नुकसान निकालना बड़ा ही आसान काम है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर